Recording has been started. Now, in this session, we will go to straightness measurement. Um, Suppose you are means measuring a particular table. Hmm? So one corner of the table and another corner of the table, that portion should be straight. Suppose A, B, C, D are four corners. A to B is straight. B to C is straight. C to D should be straight. D to A should be straight. Four corners, okay? That should be straight. Then A to C, diagonal. That should be straight. B to D, diagonal. That should be straight. All six these lines should be straight. And if those lines are in one plane, then you can say that that surface is flat. So flatness is also achieved. So number of straight lines, if they are in the same plane, then you can say that it is a flatness. Of course, exact 100% in one plane, it is not possible. Some deviation will be there. But if that some deviation is within the tolerance specified by IS standard or inspection standards, then you can say that that surface is flat. For example, surface plate on which we are doing the experiment, that is perfectly flat. Means that flatness, that up and down points of that lines, they are within very small deviation. Very small deviation. 0.000 something. Means it is almost flat. ये हमको नेकेड आई के समझने से काफी बाहर है ये सब चीज. तो ये हाईएस्ट एक्यूरेसी की बात चल रही है. तो ये स्ट्रेटनेस मेजर कैसा करने का, फॉर चेकिंग फ्लैटनेस इवन यू हैव टू measure the straightness of various lines, and then from that you can predict कि whether that surface is flat or not. So straightness और flatness ये measurement करना है तो आपको पहले straightness measurement करना सीखना चाहिए. So what are various instruments which are used to measure the straightness? So the first one is straight edge. Straight edge. Second one is uh, your spirit level, okay. And third one is autocollimator. Out of that, the spirit level and autocollimators, that description is given in the textbook under angular measurement devices. Why it is so? Because whenever you are measuring straightness, and so if there is some slope, so slope is treated as slope may be upward, slope may be downward. So that is taken as taper. And that's why it is mentioned under angular measuring devices. अगर आपको ऐसा स्ट्रेटनेस मेजरमेंट का ऐसा स्पेशल चैप्टर नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने भी वो सब उसमें ही डाला था. और मैं परसों ढूंढ रहा था कि स्ट्रेटनेस मेजरमेंट का मेरा स्लाइड गया कहाँ, तो वो मेरा एंगुलर मेजरमेंट में ये इंस्ट्रूमेंट थे. तो मैंने क्या किया, उसको वहां तो उसको एक रखा ही, लेकिन उसकी एक कॉपी यहाँ पे लाके रख दी और स्ट्रेट एज के साथ. तो ये एक अलग चैप्टर मैंने बना दिया स्ट्रेटनेस मेजरमेंट, बिकॉज दैट इज एज पर यूर सिलेबस. आपका सिलेबस जो है उसमें 2.1 स्ट्रेटनेस मेजरमेंट है और ये तीन इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिकली दिए है. तो अकॉर्डिंगली आई हैव प्रिपेयर्ड माय स्लाइड्स. ओके, सो वी विल गो टू द फर्स्ट स्लाइड नाउ. वी विल गो टू स्ट्रेटनेस, स्ट्रेट एज मेथड. स्ट्रेट एज नाम का अगर हमको स्ट्रेट एज का फिगर यहाँ पे मैंने नहीं दिया तो आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ. अपने लेबोरेटरी में स्ट्रेट एज है, तो मैं इसमें जाएंगे, थोड़ा सा नेट पर जाएंगे और आपको दिखाते हैं. स्ट्रेट एज बोलो तो वो ज्योमेट्री दिखा रहा है इसमें. ये देखो ये स्ट्रेट एज. द स्ट्रेट एज इज अ टूल यूज फॉर ड्राइंग स्ट्रेट लाइन. तो ये स्ट्रेट एज इसके लिए उन्होंने दिया है तुम्हारा ड्रॉ वगैरह करने के लिए, मतलब अपना सिंपल स्केल जैसा. सो दिस इंस्ट्रूमेंट इन मेट्रोलॉजी हम लोग टाइप करेंगे.
metrology lab, laboratory. Let us see. Straight edge. तो यहाँ पे अगर वो देते हैं कहीं मैनुअल में, अगर तो हम वो दिखाते हैं आपको। है वो फिगर्स दिया नहीं इन्होंने भी। फिगर्स नहीं है, थोड़ा सा हमको ढूंढना पड़ेगा उसको, इसलिए मुझे वो टाइम पे भी फिगर नहीं मिला था। कभी कभी क्या होता है कि टाइम टू टाइम वो ये होता रहता है। जस्ट मिनट। फोटो कहते हैं हम लोग, अगर फोटो भी दिखाई दिया तो आपको मालूम पड़ेगा कि कैसा दिखता है वो। फोटो ऑफ हाँ, देखो ये स्पिरिट लेवल टाइप है। स्ट्रेट एज ठीक से नहीं दिखाया उन्होंने। सो हाँ, देखो बच्चों, ये स्ट्रेट एज ऐसे स्ट्रेट, एकदम परफेक्टली स्ट्रेट। ये जो लाइंस है ना, एकदम परफेक्टली स्ट्रेट रहता है। इतना स्ट्रेट रहेगा कि इसमें थोड़ा भी ऐसा ऐसा गैप नहीं रहेगा। सो दिस स्पेशली मेड स्ट्रेट एजेस। तो उसका सेक्शन भी देखो, इतना परफेक्टली ऐसा आई टाइप है थोड़ा सा, या फिर सी टाइप ऐसा रहेगा कि तुम्हारा स्टेबिलिटी बनी रहे ये पूरी। देखो ये स्ट्रेट एज है, इधर थोड़ा सा ऐसा नाइफ टाइप है ऐसा थोड़ा सा, और ये पूरा लाइन है ना, ये लाइन में स्ट्रेटनेस मेंटेन की है। तो ये उन्होंने वो उसकी प्राइसेस भी दिए है सब। नाइफ एज टूल एंड स्ट्रेट एजेस 900, 6000, 15,000 लाइक दैट। यहाँ पे क्या किया है उन्होंने, वो पर्टिकुलर शेप मेंटेन किया है उसको स्टेबिलिटी ये देने के लिए। इसमें थोड़ा भी डिफ्लेक्शन नहीं है, तो मतलब एकदम परफेक्टली स्ट्रेट है। तो ऐसे स्ट्रेट एजेस अवेलेबल है हमारे लैब में। कैसा मालूम है क्या, ये टाइप का ऐसा क्रॉस सेक्शन है, और ऐसा जाने के बाद यहाँ पे ऐसा एक स्मॉल पीक है सामने, ऐसा एकदम स्ट्रेट ऐसा पीक दिए, और नीचे का पोर्शन ऐसा परफेक्टली स्ट्रेट है। तो ये एक हम लोग इसको कॉपी कर देते हैं, हमारे पास भी रहने दो इसको। वो क्यों नहीं रहा भाई, प्रॉब्लम आ गया कुछ, तो वो सेव नहीं हो रहा है। जस्ट अ मिनट। नहीं हो रहे ना, इट्स नॉट अलाउड। यही प्रॉब्लम होता है ये लोगों का। सो हम लोग नेट पे ही देखे, मैं बाद में उसको ट्राई करता हूँ, बाद में उसको हम लोग ये करते हैं। तो स्ट्रेट एज एक्चुअली परफेक्टली स्ट्रेट पोर्शन रहता है, इसमें हम बाद में करते हैं। सो व्हाट दे डू इज, स्ट्रेट कोई भी हमको पोर्शन मेजर करना है तो उसमें उसको रख देते हैं। तो आप बोलेंगे रख 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 देने से क्या होता है, रख रख देकर से नहीं चलेगा। आपको आपको बैक साइड से लाइट छोड़ना पड़ेगा, बैक साइड को लाइट छोड़ना पड़ेगा। अभी वो लाइट सामने आना ही नहीं चाहिए, लाइट सामने बिल्कुल नहीं आना चाहिए।
तो वो क्या कहते हैं, इन दिस मेथड टूल मेकर्स एज and white light source is used. This method is explained in following steps. Keep true straight edge on the work surface and project them against the light source. Back side से light source आप छोड़ दो and observe from the other side. बिल्कुल वो आना नहीं चाहिए. The gap between the true straight edge and work surface is the straightness error. अगर गैप है तो वो straightness error है. And light rays passes through this gap will get diffracted and get different colors will be seen. एकदम छोटा सा गैप रहेगा ना, डिफरेंट कलर्स विल बी सीन. अगर बड़ा है तो डायरेक्टली वो व्हाइट लाइट अपने आंख तक आ जाएगा. इतना तो स्ट्रेट कोई भी सरफेस हम मेजर कर रहे हैं, एक्यूरेसी का मामला है ना, तो थोड़ा भी अगर गैप रहेगा ये माइक्रोन में भी, तो वो लाइट आपका वो जो है वो डिफ्रैक्ट हो जाएगा. अब अभी देखो कलर से मालूम पड़ता है कि गैप कितना है. कलर ऑफ दिस डिफ्रैक्टेड लाइट रेज विल इंडिकेट द स्ट्रेटनेस एरर. कौन सा कलर है उससे लोग पहचानता है. Red color rays indicates the gap of mm to mm. mm मतलब red color indicates the gap of mm to mm. How much mm, that is not known, but it is sufficiently big. So don't write it some value. It is indicates a big gap, and the blue color indicates gap of 0.005 mm. So this is 5 micron if blue light is seen. With this method, straightness of shorter surface produces by lapping can be known with 5 micron accuracy. तो इसका लिमिटेशन है 5 माइक्रोन. मतलब ब्लू लाइट दिखना चाहिए तो आपको आप बोलते हैं कि वो 5 माइक्रोन एक्यूरेसी है. वो भी नहीं दिखा तो उससे भी जब उसको एक्यूरेसी आपका इट इज मोर एक्यूरेट मोर देन 5 माइक्रोन है. बट इट इज अ क्रूड मेथड. इसमें आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा. आपको मिलेगा कि अप टू दिस 0.005 mm ये गैप है. इतना मालूम पड़ेगा. तो ब्लू लाइट ये अपना टारगेट है. ये रेड लाइट मतलब एक्चुअली उसका ज्यादा है वैल्यू. उन्होंने वो वैल्यू नहीं दिया था लिटरेचर में, तो वो वैल्यू हम लोग ढूंढेंगे बाद में. अगर मिला तो मेरे को आप भी बोलो, आप भी ढूंढो, मैं भी ढूंढ दूंगा. ओके. So at present you can see the red color rays is showing more gap, while blue color indicates a gap of 0.005 mm. And with this method straightness of shorter surface can be seen. बट अगर आपको बड़ा टेबल है आपका, या आपको सरफेस प्लेट का ही आपको सरफेस प्लेट का चलेगा इससे स्ट्रेट एज से 2-3 बार आपने ये किया तो. लेकिन बड़ा अगर आपको स्ट्रेटनेस मेजर करना है, फॉर एग्जांपल लेथ बेड के ऊपर हमारा क्रॉस लाइट अपना सॉरी अपना ये चलता रहेगा ना पूरा तुम्हारा लॉन्गिट्यूडिनल स्लाइड पूरा कैरेज ऐसा चलता रहेगा, फ्रॉम हेड स्टॉक टू टेल स्टॉक घूमता रहेगा. तो उसका स्ट्रेटनेस जरूरी है, क्योंकि अगर वो स्ट्रेट नहीं है तो आपका टर्निंग बराबर पैरेलल टू एक्सिस नहीं होगा. बराबर है ना. तो पैरेललिज्म एग्जैक्ट अगर मेंटेन करना है तो उसका स्ट्रेटनेस आपको जरूरी है. किसका? मशीन टूल बेड का. तो ये जो टेस्ट है ना, स्ट्रेटनेस फ्लैटनेस, ये सब कहाँ आ जाता है, आपको यूज होता है मशीन टूल अलाइनमेंट टेस्टिंग, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस. इधर डिप्लोमा में एक जगह वो था मशीन डिजाइन में या मशीन टूल डिजाइन में समवेयर ये सब्जेक्ट हमको प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में जो जहां मैंने बी किया था ना, तो वो टाइम वो सिलेबस में था मशीन टूल अलाइनमेंट टेस्टिंग. तो उसमें स्पिंडल का पैरेललिज्म विद योर मशीन टूल बेड वगैरह ये सब चीज होते थे. स्क्वायरनेस ऑफ योर फेस प्लेट टू विथ योर लेथ बेड. स्क्वायरनेस मींस परपेंडिकुलरिटी. ये सब चीजें एक्चुअली मेजर किए जाती है इससे स्ट्रेटनेस. और एक मेथड है मॉडर्न डे मेथड. मॉडर्न डे बोले तो फिर भी 89 में मैं वालचंद नगर में था, तो वहाँ स्कोडा नाम की एक कंपनी है बड़ी. उसके बड़े बड़े मशीन रहते हैं, हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन, सीएनसी मशीन. तो उसका स्ट्रेटनेस फ्लैटनेस मेजर करने के लिए लेजर का यूज किया था. सो लेजर वेव्स के से भी ये सब लेजर रिफ्लेक्टर से वगैरह ये इसका यूज होता है. तो अगर आप में से कोई सेमिनार लेता है इसको स्ट्रेटनेस मेजरमेंट वगैरह, तो उसमें वो लेजर भी इंक्लूड कर सकते हो. मतलब आप थोड़ा सा उसका लिटरेचर पढ़ के. तो इसमें यूरोपियन कंपनीज स्कोडा मशीनरी वगैरह, तो वो मतलब मशीन मैन्युफैक्चरर को ही हम लोग बुलाते थे आप ही करके दे दो, तो वो लोग लाके करके देते थे उसका टेस्टिंग वगैरह, कुछ एडजस्टमेंट, कुछ पार्ट बदलना पड़ेगा क्या वगैरह ये सब. सो स्ट्रेटनेस मेथड बाय द वे इज अ क्रूड मेथड. सो दैट इज अबाउट दिस.
वे फिगर बाद में आप लोग ड्रॉ करो, बुक में वगैरह दिए। कहीं नहीं मिला तो मैं फोटो ये करके डाल दूंगा। प्रिसीजन लेवल मेथड, यानी प्रिसीजन लेवल और स्पिरिट लेवल। हाँ, इंडस्ट्री के लोग लेवल बॉटल भी बोलते हैं, लेवल बॉटल, लेवल बॉटल उनका स्पिरिट लेवल, प्रिसीजन लेवल, ये अलग अलग वर्ड्स है उसका। तो ये क्या है बेसिकली? सो दिस मेथड इज सिमिलर टू ऑटो कॉलिमेटर मेथड। ऑटो कॉलिमेटर मेथड हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ इस वर्ड का कुछ मतलब नहीं है, स्टेटमेंट का तुम्हारे लिए अभी एट प्रेजेंट कुछ मतलब नहीं है। ऑटो कॉलिमेटर भी हम लोग देखेंगे बाद में, और स्पिरिट लेवल भी देखेंगे। हियर द प्रिसीजन स्पिरिट लेवल इज यूज्ड। दिस मेथड इज एक्सप्लेन इन फॉलोइंग स्टेप। ये बाद में आप लोग पढ़ लेना, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली लेके जाऊंगा उसके फिगर की तरफ। तो ये स्पिरिट लेवल है, ये भी मैंने नेट से ही लिया है। तो अपने कॉलेज में भी बहुत बढ़िया स्पिरिट लेवल है, मेरे ख्याल से जर्मनी से मंगवाई है, बहुत बढ़िया क्वालिटी की है। तो इसमें क्या रहता है मालूम है क्या? ऐसा एक ये सरफेस एकदम परफेक्टली स्ट्रेट रहेगा। हाँ, ये परफेक्टली ये ऐसा स्ट्रेट रहेगा। अभी जो सरफेस पे हमको लेवल मेजर करना है ना, तो उसमें ये सरफेस में हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले ये साइड को हम बोलेंगे ए, और इसको कहेंगे हम लोग बी। तो जो सरफेस हमको मेजर करना है उसको हम इसके पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। जैसे ये लेंथ है 200, आपका आपका ये लेंथ अगर 200 mm है, तो यहाँ ए पॉइंट रहेगा, बी पॉइंट 200 पे रहेगा, सी पॉइंट 200, डी 200, ई अगेन 200, ऐसा 200 200 200 पे हम लोग पॉइंट मार्क करते जाएंगे। क्योंकि हमको क्या करना है, हमको एक ग्राफ निकालना है। ए टू जितने भी पॉइंट आखिर तक जाएंगे उसमें ए टू बी, तो बी में ए टू बी में कितना आपको फर्क आया लेवल का? इज इट एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल टू द सी लेवल, और थोड़ा ऊपर आया, मतलब ऊपर जा रहा है बी पॉइंट ए से या नीचे जा रहा है, वो हमको देखना पड़ता है। अभी वो कैसा देखना पड़ता है देखो, दिस इज एक्चुअली रिलेटेड टू द पैरेलल टू सी लेवल। जैसे ये सरफेस अगर आपका पैरेलल टू सी लेवल है, तो ये तुम्हारा जो सरफेस है ना, ये नीचे वाला, वो जब स्पिरिट लेवल उस पे सरफेस पे हम लोग रखने के बाद वो बराबर पैरेलल टू सी लेवल रहेगा। आप बोलेंगे पैरेलल टू सी लेवल है, ये आपको समझेगा कैसे? तो ये जो बबल रहता है ना इधर, अंदर एक सॉल्यूशन रहेगा ना स्पिरिट लेवल के, तो उसमें एक एयर बबल रहेगा, वो एयर बबल बराबर सेंटर में रहेगा। यहाँ एक मार्किंग है, देखो ये ब्लैक कलर से जो मार्किंग दी है ना, इसके बराबर सेंटर में रहेगा। आप लोगों को ये थोड़ा बड़ा करके मैं दिखाऊं तो आपको और अच्छा क्लियरली समझेगा। एक मिनट बच्चों, एक मिनट, यहाँ पे ये नको, ये वाला, हाँ ये देखो, ये दिख रहा है क्या बबल आपको? ये देखो, ये दिख रहा है ना बच्चों, ये देखो, ये जो दो मार्क है ना, इसके बीच में आना चाहिए ये जो सेंट्रल पोर्शन। इसका मतलब तुम्हारा ये जो सरफेस है ना, ये एग्जैक्टली पैरेलल टू योर सी लेवल है। इसका मतलब तुमको ये स्पिरिट लेवल से जब एक्सपेरिमेंट करना है ना, तो तुम्हारा जो सरफेस प्लेट है पहले, जिसका मतलब तुम्हारा जो सरफेस है ना, वो पहले उसका ये देखना पड़ेगा। सरफेस प्लेट तो हम लोग स्पिरिट लेवल से उसको एडजस्ट करके ले लेते हैं एग्जैक्टली इसी लेवल, लेकिन जिस सरफेस का हमको मेजरमेंट करना है वो तो वैसा रहेगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, पहला जो लाइन है ए टू बी, उसके रेफरेंस से हम वो अगले जो पॉइंट्स है वो कितना डिस्टेंस ऊपर नीचे वो चेक करते हैं। तो वो कैसा चेक करते हैं हम लोग, ए टू बी हम लोग देखते हैं। तो ये पहला ए रहेगा इधर, और वो साइड रहेगी बी, तो उतने डिस्टेंस में ये सेंटर में है क्या देखते हैं। एक्चुअली ये सेंटर में कैसा आता है, तो ये जो तुम्हारा जो ग्लास का ये जो बल्ब है ना बीच में, ये ग्लास ट्यूब है ना, ये एक्चुअली कर्व रहता है। आप हंसेंगे मेरे को कि ये आप स्ट्रेट दिख रहा है सर, ये आप कर्वेचर है, ये ऐसा कैसा कहते हैं? तो इसका कर्वेचर यानी रेडियस इतना लार्ज रहता है, जैसे 51 मीटर, 51 मीटर इज रेडियस। ओके, 51 मीटर रेडियस का 200 का पार्ट आप ले लेते हैं, तो वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही दिखता है आपको। हाँ, तो आंखों को समझेगा नहीं, स्ट्रेट ही दिखता है। लेकिन उसके बीच में अगर एयर बबल है सॉल्यूशन में, और ये पोर्शन अगर बराबर लेवल में आ जाएगा, तो ये सेंटर में आ जाएगा। समझो
आपका एक मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक जस्ट अ मिनट, फिर से उसका छोटा करना पड़ेगा मुझे अभी। हाँ, आपको ये दिखाने के लिए। हाँ, यहाँ सॉरी, यहाँ। हाँ। तो ये जो पोर्शन है इधर का ए और इधर का बी, बाद में ये रीडिंग होने के बाद ये ए हम लोग इधर पे डालेंगे, बी मतलब बी पे डालेंगे, और सी पे तुम्हारा ये दूसरा एज होगा। ऐसा करते करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ए टू बी जो लाइन है ना, उसमें समझो ये बी वाला जो पोर्शन है, ये बी ऊपर है ए के लेवल से, मतलब थोड़ा सा ऊपर है। अरे ये क्या हो रहा है, आपको सिखाते टाइम वो हाँ, ये हाँ, अगर ये ए पॉइंट है ना, इसके बजाय ये बी थोड़ा सा ऊपर है, तो क्या होगा कि ये स्लोप ऊपर की तरफ ऐसा दिखेगा ना, इट इज क्लाइंबिंग। तो उसमें क्या हो जाएगा, ये जो बबल है ना तुम्हारा बबल, ये बबल आपका ये साइड में शिफ्ट होगा, राइट साइड में शिफ्ट होगा। अगर ये बी पॉइंट आपका क्लाइंबिंग है, तो आपका जो स्पिरिट लेवल का जो ये जो बबल है ना सेंटर का, वो राइट साइड में शिफ्ट होगा। वो कितना शिफ्ट होगा, उसके डिवीजन यहाँ पे रहते हैं। समझो 1 या 2 डिवीजन आपका शिफ्ट हो गया, तो वो कितना कितना रीडिंग है आपका, कितने रीडिंग से हाइट बढ़ गई, ये हम लोग निकाल सकते हैं। वो कैसा निकाल सकते हैं, इसके लिए थोड़ा सा एनालिसिस हमको करना है। तो ये इसको हम लोग आगे, तो स्पिरिट लेवल का कंस्ट्रक्शन में एक्चुअली वो सर्कुलर पोर्शन है बीच में। हाँ, तो ये देखो, वही हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं। हाँ, स्ट्रेटनेस मेजरमेंट मतलब सामने वाला पोर्शन अगर थोड़ा सा बड़ा है, ऊपर 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 है, ऊपर जा रहा है, तो वो हमारा बबल है ना, ये सेंटर में जाने के बजाय, सेंटर में जाने के बजाय वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। यार क्या हो रहा है ये, हाँ, राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कर्वेचर ऐसा, ये पोर्शन कर्वेचर होने के कारण, ग्लास का पोर्शन, ये से बीच का जो पोर्शन कर्वेचर होने के कारण क्या क्या हो जाएगा, एयर बबल विल टेक द अपर मोस्ट पोजीशन। बराबर है ना, सर्कुलर पोर्शन है, अगर ये पोर्शन सर्कुलर है, तो एयर बबल विल टेक द अपर मोस्ट पोजीशन। मतलब कभी भी देखो तुम लोग, अगर ग्लास बल्ब तुम्हारा ये है, सर्कुलर पोर्शन है, तो वो सबसे ऊपर वाले पोर्शन में बबल आ जाएगा ना। तो यहाँ पे अगर तुम्हारा पोर्शन राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है बबल, इसका मतलब ये तुम्हारा लिफ्ट हो गया, ये बी साइड लिफ्ट हो गया, तभी तो तुम्हारा बबल ये साइड में आ गया। ऑन द वाइस वर्सा, अगर तुम्हारा स्लोप डाउनवर्ड है, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा बबल लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो वो बच्चों समझ में आ रहा है क्या? हेलो, हेलो। यस सर। क्योंकि मैं यहाँ सिखा रहा हूँ ना, तो तुम लोगों के साथ वो जुड़ा है कनेक्शन क्या नहीं, वो मुझे नहीं दिख रहा है। तो इसलिए मैं आपको बोला कि पूछा है। तो ये है, तो तो उसके ऊपर वो डिपेंड है, राइट साइड में लेफ्ट साइड में कैसा जाएगा। तो बबल विल ट्राई टू टेक अपर मोस्ट पोजिशन। तो वही अभी यहाँ पे भी दिखा है हम लोग। देखो, अगर ये साइड में हम लोग जा रहे हैं, हाँ, और ये जो रेडियस है ना, ये सेंट्रल पोर्शन की रेडियस, वो तो हमको दिखते टाइम एकदम फ्लैट दिखेगी। तो ये रेडियस जो है, उसको हम लोग उसके ऊपर सेंसिटिविटी ऑफ द स्पिरिट लेवल डिपेंड है। जितना ज्यादा रेडियस, उतनी सेंसिटिविटी ज्यादा। तो ये देखो, ये अभी ज्योमेट्री कैसी होती है, ये स्पिरिट लेवल का ए और बी पॉइंट। तो ये एंगल है ना, ये समझो कितना डिग्री है, ये 5 डिग्री है, यहाँ पे दिखाई दिया उन्होंने। तो ये भी एंगल 5 डिग्री है। ये भी एंगल 5 डिग्री होगा ना, ये हमारा जो सेंट्रल पोजीशन और वो शिफ्ट हुआ हुआ पोजीशन, ये भी 5 डिग्री है, ये भी 5 डिग्री है। वी नो दैट एस इज इक्वल टू आर थीटा, ये अपना बेसिक प्रिंसिपल। तो बबल मूवमेंट बाय वन डिवीजन, एक डिवीजन अगर इसका मूव हो गया 0 से, तो वो कितना एंगल है वो हम देख सकते हैं, दैट डिपेंड अपॉन योर रेडियस। तो बबल मूवमेंट बाय वन डिवीजन, दैट इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्पिरिट लेवल,
which is equal to r into theta. r is the radius of that spirit level, वो जो उसका आउटर सरफेस है उसका रेडियस, r is the, तो r into theta, where r is the radius of curvature of glass tube of spirit level, जो बीच का पोर्शन है वो. अभी h के साथ ये जो h है ना हाइट, ये हाइट हमारा कितना ऊपर नीचे गया उसका भी एक वो फॉर्मूला, h इज इक्वल टू l इंटू थीटा. h ये जो हाइट है, ये हाइट यानी ये कर्वेचर और ये ऑलमोस्ट सेम है, बिकॉज देयर इज अ वेरी वेरी स्मॉल डिफरेंस. मतलब ये जिस हाइट से हमारा ये लिफ्ट हो गया है कौन स्पिरिट लेवल, दैट इज इक्विवेलेंट टू दिस एंगल ना, है बराबर है ना. सो h, दैट इज दैट पोर्शन, that is nothing but it is almost equal to s, okay, because it is so small. So h is equal to l into theta. r theta के बजाय अभी ये तुम्हारा पोर्शन है, ये जब लिफ्ट हो गया तो r मतलब ये डिस्टेंस अभी, that l into theta. l, what is l? l is the length of the spirit level, दो जो ab distance, ab. So and h is the height difference between two readings, बराबर, पहले पोजीशन और दूसरे पोजीशन को. So हम लोग निकालेंगे theta is equal to h by l, but also theta is equal to 1 division of the spirit level divided by r from this formula, बराबर है. So h is nothing but, that height difference is nothing but l into 1 division upon r. समझ गए बच्चों? l that is 200 mm into 1 division, जो तुम्हारा डिस्टेंस है वो 1 डिवीजन डिवाइडेड बाय r, that is known as sensitivity of spirit level. अभी that h upon r in short. So r जितना तुम्हारा बड़ा है उतनी तुम्हारी सेंसिटिविटी बढ़ गई, यानी तुम्हारा रीडिंग छोटा छोटा होता, मतलब उसको फ्रैक्शन में आपको मिलेगा, उसका ये हाइट का कितना डिफरेंस है वो सब आपको मिल जाएगा. सो सेंसिटिविटी डिपेंड अपॉन r, ओके. सो व्हाट इज सेंसिटिविटी ऑफ स्पिरिट लेवल वगैरह, ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चन भी पूछा गया तो ये शॉर्ट नोट आपको लिखना है. तो आपकी r जितनी ज्यादा उतने आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी. तो ये स्पिरिट लेवल है. मतलब आप फिर क्या करने का, ए बी का एक ऐसा स्ट्रेट लाइन निकालने का, समझो ए का जीरो रीडिंग है, बी प्लस 3, अभी बी प्लस 3 है, बाद में ये पोजीशन इधर लाना, स्पिरिट लेवल यहाँ रखना. अभी ये अगर यहाँ से नीचे जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं +2, ओके. देन यहाँ पे जाता है +3, कभी कभी +3 के बाद आपका नीचे जाता है तो मतलब आप -2 भी बोल सकते हैं, मतलब जैसा पोजीशन जाएगा वैसा. तो यहाँ से जब वो राइट साइड से ऊपर उठ रहा है तो प्लस, और वैसे ही नीचे जा रहा है तो माइनस, ऐसा करके हम एक ग्राफ निकालेंगे. अभी जीरो पोजीशन से प्लस में कितना जाना चाहिए और माइनस में कितना जाना चाहिए, ऐसा एक अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट का एक स्टैंडर्ड रहेगा एज पर ISI, अपना IS स्टैंडर्ड. तो उसके बीच में अगर हमारा सरफेस है तो वी विल कॉल दैट इट इज ओके फॉर इंस्पेक्शन. जैसे हमारा सरफेस प्लेट या मशीन बेड हम लोग इससे चेक कर रहे हैं, और वो जो डेविएशन है माइक्रोन लेवल में, वो अगर प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड के अंदर है तो हम बोल सकते हैं कि ये आप चलवा सकते हैं, आप इसको और भी चलवा सकते हैं. अगर नहीं है तो आप बोल सकते हैं कि इसको एक तो रिपेयर करो या फिर आप पार्ट बदल दो. बराबर है बच्चों, समझ में आया? हेलो, टेल मी, प्लीज स्पीक. आपका माइक ओपन करके Yes, sir. हाँ, अगर किसी को थोड़ा भी डाउट है तो मेरे को पूछो. नहीं तो ऐसा होगा मैं आगे जाता रहूंगा और बच्चे बेचारे टेंशन में वही पॉइंट में अटक जाएंगे. ऐसा कुछ नहीं है ना? हेलो, ठीक है. आई अज्यूम दैट यू हैव अंडरस्टूड इट, क्योंकि मैंने अभी क्या है, मैं अगर सामने रहेगा ना तुम्हारे तो एकदम एक्शन करके आपको इतना मस्त समझा देता हूँ ना, तो वो यहाँ पे मिसिंग है, क्योंकि मेरा जो एक्शन है, मेरे हैंड मूवमेंट, मेरा ये सब पेन और पेपर कागज, ये समझाना ज्यादा इजी रहता है इससे, क्योंकि मैं बार बार वो जो पोजीशन चेंज होती रहती है ना इसकी, वो एनिमेशन टाइप में आपको उसका डिस्क्रिप्शन करके और सामने करके दिखा सकता हूँ. वो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है, वो आमने सामने सिखाने का थोड़ा सा वो एडवांटेज रहता है.
लेकिन मैं आई एम ट्राइंग टू मेक द डिस्क्रिप्शन एंड ब्रिंग द पिक्चर बिफोर यू, आई एम ट्राइंग दैट, ओके। इंजीनियरिंग के बच्चों का आईक्यू अच्छा रहता है, इसलिए थोड़ा सिखाना अच्छा है, अदरवाइज ये कंसेप्ट ऐसा इजी इतना भी नहीं है इजी कि कोई लेमैन भी ऐसा फट के समझ जाए, ऐसा भी नहीं है। एनीवे और इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, हाँ? तो ये all there is a logic and science everywhere is geometry, so basic knowledge is there। तो इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट नोट मैंने ऐड किया है, स्पिरिट लेवल, सेंसिटिविटी एंड एक्यूरेसी वगैरह। मुझे अच्छा लगा मटेरियल ये कि बच्चों को मेरे नॉलेज होना जरूरी है, तो मैंने ये सब ऐसा यहाँ पे लिखा है। और जो भी मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा था ना तुमको, ये देखो ग्राफ, क्यूमुलेटिव एरर एंड एरर विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रेट एज। तो ये पहला पॉइंट, ए बी, बी सी डी, डी ई, लाइक दैट, ये ऐसा ये करके ऐसे ग्राफ बनाते हैं उसको बाद में। और ये जो ग्राफ है वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो प्रिस्क्राइब्ड है तुम्हारे हायर स्टैंडर्ड के हिसाब से, उसके बीच में होना जरूरी है। दूसरी एक मेथड है क्यूमुलेटिव, उससे भी फिर वो, लेकिन ये ज्यादा अच्छा है, इसमें सीधा सीधा अपर लिमिट लोअर लिमिट और ये इसके बीच में होना जरूरी है, तो वो ग्राफ निकाला। तो दिस आई हैव टेकन फ्रॉम आरके जैन। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया है वो, इफ द ग्रेजुएशंस आर एट 2.5 mm इंटरवल्स, ये स्लिप अपना स्पिरिट लेवल का, एंड दिस रिप्रेजेंटेड टिल्ट ऑफ 10 सेकंड ऑफ आर्क, 10 सेकंड एंगल, एंगल डिग्री मिनट और सेकंड में भी आते हैं ना, तो एक्यूरेट मामला है भाई ये तो। 10 सेकंड ऑफ आर्क का अगर रिप्रेजेंट करता है ये 2.5 mm स्पिरिट लेवल का, स्पिरिट लेवल का एक डिवीजन है, वो 10 सेकंड एंगल मेजर ये करता है। तो उसका मतलब क्या होता है देखो, 10 सेकंड बोले तो कितना रेडियन आता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री बोले तो भयंकर कुछ तो हो गया। अभी 10 सेकंड बोले तो बहुत ही कम हो गया ना। तो वो हिसाब से हम लोग ये रेडियंस यहाँ पे निकल सकते हैं। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री इंटू 60 सेकंड। तो फिर 10 सेकंड के लिए कितना, सो 10 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 180 इंटू मतलब 60 इंटू 60, ऐसा करेगा तो तुमको मिलेगा ये रेडियन। बच्चों ये आएगा ना तुमको करने को, मतलब इतना यार इतने डीप तक हम जाएंगे नहीं, लेकिन ये एक एग्जांपल देखो, ये मतलब मैं मेरे लॉजिक से पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री याद रखा ना, तुमको बाकी सब आएगा ये। तो ये आप कर सकते हैं, ये रेडियन इज इक्वल टू, ये एंगल थीटा इज इक्वल टू वो स्मॉलेस्ट डिवीजन डिवाइडेड बाय दैट आर, वो बेसिक फॉर्मूला है ना वो सेंसिटिविटी का, वो उसके हिसाब से। तो आर आपका कितना हो गया, 2.5 डिवाइडेड बाय ये, यानी 51,500 mm, आई शपथ बोले तो ये कितना हो गया, 51 मीटर। बच्चों 51 मीटर रेडियस हो गया, वो पोर्शन है तुम्हारा आर। तो उसका तुम छोटा सा पोर्शन ले लोगे तो वो स्ट्रेट ही दिखेगा ना। हाँ, यूजिंग दिस वाइल्ड रेडियस देन इन अ बेस whose length is 250 mm। तो ऐसा समझो स्पिरिट लेवल का बेस 250 mm का है, बड़ी स्पिरिट लेवल ले लिए उन्होंने एग्जांपल में, 250 mm की बेस वाले अगर स्पिरिट लेवल आपने ले लिए, तो हाइट x which one end must be raised for 2.5 mm bubble movement is given by, इतना रेडियन आपका एंगल रहेगा। x is the height by which it has to be raised for 250 mm width, that length of the spirit level, यानी 0.012 mm। इसका मतलब तुम्हारा एक डिवीजन शिफ्ट हो गया ना राइट साइड में, तो उसका लिफ्ट कितना है बी का कंपेयर टू ए, मतलब वन अनदर साइड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट साइड 0.012 mm से वो उतना लिफ्ट हो गया, ऐसा समझने का मतलब दैट एच यू आर कॉलिंग, एच के बजाय ये लोग एक्स लिए, हमारे इसमें हम लोग एच बोला है। तो ऐसा है। अभी ये लेंथ 250 से रिड्यूस कर दिया हमने, तो ये 0.012 है वो भी कम हो जाएगा। अभी इसको 250 के बजाय हमने 125 यानी छोटी स्पिरिट लेवल बनाएगा, तो
वो जो साइड ए टू बी का जो हाइट डिफरेंस है वो उसका आधा हो जाएगा 0.006 प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से। 125 का स्पिरिट लेवल बहुत छोटा रहेगा, छोटी साइज का रहेगा। अपने कॉलेज में ना वो 200 mm का है, मस्त है, वो भी मस्त है एकदम, जर्मनी का है। कभी अपना कॉलेज खुलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। वो अभी सीएनसी लैब में रखा है, वो जो टेबल है उधर वेस्ट साइड में उसमें सब रखे हैं। तो इज इन वेरी गुड वर्किंग कंडीशन डेफिनेटली। तो ये रहा तुम्हारा स्पिरिट लेवल। तो बच्चों आज हम लोग यहाँ पे रुकते हैं, क्योंकि ऑटो कॉलिमेटर का कंसेप्ट और नया है ना, तो वो हम लोग बाद में देख सकते हैं। एक मिनट, हाउ डू आई चेक द एक्यूरेसी ऑफ स्पिरिट लेवल, थोड़ा सा ये भी मैंने पॉइंट्स डाले। ऑटो कॉलिमेटर मेथड ये बाद में हम लोग कल देखने वाले। ओके, हम लोग कल कल बच्चों छुट्टी है ना अपने को? कल छुट्टी है ना? कल मोहर्रम है शायद, वो छुट्टी है अपने को। परसों अपन मिलेंगे, बराबर है ना? परसों मिलेंगे। ओके, चलो। सो नाउ आई एम स्टॉपिंग माय रिकॉर्डिंग।